اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے نومبر کی ہوروسکوپی۔ 4 برج سرطان، اسد، سنبلہ اور میزان، ان کی ہم آپ کو پورے مہینے کی ہوروسکوپی بتائیں گے۔ ہم ایک ذیچہ بناتے ہیں، وہ ذیچہ پہلا جو یہ صفحہ یہ کسی انسان کا تعارف ہوتا ہے، جیسے یہ میزان برج والوں کا تعارف ہے کہ ان کا روحانی جنبہ، اللہ نے انسان کے 2 جنبے بنائے ہیں، ایک روحانی جسمہ اور ایک روحانی جنبہ اور ایک جسمانی جنبہ۔ روحانی جنبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ینفخ فیہ روحی، کہ اس بت میں میں نے اپنی روح پھونک دی، اور بت کے بارے میں کہا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ تو یہ روحانی جنبہ کا یہ مطالعہ ہوتا ہے، پھر یہ جسمانی جنبے کا مطالعہ ہوتا ہے، پھر آپ سے منسوب بیماریاں ہوتی ہیں، پھر آپ کی معاشرتی درجہ بندی ہوتی ہے، پھر عام حالات زندگی، پھر آپ کے کاروبار۔ یہ ہوتا ہے آپ کا تعارف کہ آپ کی ڈیوائس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم جو ہے نا ایک ذیچہ بناتے ہیں 12 خانوں پر مبنی۔ یہ 12 خانوں پر مبنی جو ہے نا یہ آپ کے جو ہے نا لائف سرکل ہوتا ہے۔ پھر یہ جو ہے نا یہ ایک علیحدہ ہوتی ہے کہ یہ سال کی ہوتی ہے، پیریڈ وائز، چاند گرہن، سورج گرہن، یہ وغیرہ۔ یہ ایک مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے ایک انسان کی، جو کہ شروع سال سے یعنی 25 دسمبر میں، جنوری فروری میں بنوا لیں تو پورا سال ان کی اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اسی ذیچے سے ہم ایک مہینہ نومبر جو ہے نا بتا رہے ہیں سرطان، اسد، سنبلہ اور میزان کا۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سرطان برج والوں کی شخصیت، حیثیت ماہ کے شروع سے ہی متاثر رہے گی، اس لیے ان کی شخصیت متنازع رہے گی۔ ان کو چاہیے کہ 1 سے لے کر 5 تاریخ تک، 6 تاریخ تک آپ جو ہے نا ناپسندیدہ جگہوں اور ناپسندیدہ لوگوں سے نہ ملیں، ورنہ آپ کے لڑائی جھگڑے کے چانس ہیں، اور لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ کام کی جگہ پر اور کاروبار کی جگہ پر آپ سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ پھر حالات میانہ رہیں گے۔ 16 نومبر سے لے کر 18 نومبر تک یہ بہت اچھی عادت ہے، شرف لگا ہوگا کمر کو۔ تو پھر جو ہے نا آپ اپنی شخصیت کے بارے میں جو چیز کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کی شخصیت کا جادو سر چل بولے گا، لوگ آپ کی بات مانیں گے، اور اس دوران آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سرطان برج کے دولت کے خانے میں۔ دولت کے خانے میں 1 نومبر سے لے کر 16 نومبر تک بہت اچھی حالت ہے۔ آپ جو ہے نا دولت آپ کی پھل پھول سکتی ہے، ذرائع آمدنی سے آپ کو کافی جو ہے نا آمدنی آ سکتی ہے۔ لیکن 16 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک جو اسد برج جو حاکم رولنگ لارڈ ہے آپ کی دولت کا، وہ چلا جائے گا دشمن کے گھر، یعنی برج اکرم میں۔ تو یہاں جو ہے نا آپ کو نقصان کا خطرہ ہے، اس لیے 16 نومبر سے 30 نومبر تک اپنا سرطان برج والوں آپ اپنی دولت کے متعلق احتیاط کریں۔ چوری ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، اور کوئی کسی پر بھروسہ نہ کرنا، وہ آپ کا بھروسہ توڑ کر دولت لے کر بھاگ سکتا ہے۔ اب برج سرطان کا خانہ نمبر 3، جو عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار آپ کا 1 نومبر تک 25 نومبر یہ حالت درست ہے۔ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اندرون ملک آپ کے سیاسی سماجی سفر کامیاب ہیں، اور ان سے کافی آپ منافع کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو پھر 24 نومبر تا 16 دسمبر یہ جو ہے نا حالت آپ کی اس خانے میں خراب ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور آپ کے سفر کے میں حادثے کا بھی خطرہ ہوگا۔ 24 نومبر سے 30 نومبر آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے سرطان برج والے۔ اب جو ہے نا اس کے خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، 6 نومبر سے 11 نومبر تک یہ حالات خراب ہے، یعنی شروع سال سے اپنا 1 سے 6 تک ٹھیک ہے، اپنا 5 تک، اور 6 سے لے کر 11 تک یہ حالت خراب ہے۔ اگر کوئی لین دین ہے، جائیداد کا خرید و فروخت ہے، تو وہ تھوڑی ڈیلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر 11 کے بعد جو ہے نا آپ کی حالت درست ہے۔ 30 نومبر تک آپ کوئی جائیداد کا خریداری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نئی سواری لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ سرطان برج والے کوئی لمبی جو ہے نا انویسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جو سواری ہے وہ نئی سواری بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا کوئی زمین جائیداد میں جو انویسٹ کریں گے آپ کو وہ فائدہ دے گی، اور آپ کے خاندان میں بھی اتحاد اور اتفاق ہوگا، اور 11 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک، لیکن 1 سے لے کر آپ 11 تک احتیاط کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا
औलाद का खाना, सरतान बुर्ज वालों का औलाद के खाने में हालत जो है ना, सरतान बुर्ज वालों के औलाद का खाना, हामला खवातीन को कोई खतरा नहीं, पूरा महीना जच्चा बच्चा दुरुस्त रहेंगे। इसके अलावा जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, जॉब मंगनी शादी के मसाइल हल होंगे। इसके अलावा आपकी मोहब्बत आपका साथ दे रही है, वो सरतान जिनकी उम्र गुजर चुकी थी, अभी तक मंगनी नहीं हुई, अब उनकी मंगनी शादी होती नजर आती है। किस्मत आपकी बुलंद रहेगी, प्राइज बॉन्ड लॉटरी सट्टा जुआन दादा के काम में आपको कामयाबी रहेगी सरतान बुर्ज वालों को। अब जो सरतान बुर्ज वाले होशियार हो जाएं, ये बीमारी इनको आ सकती है, ये बीमार पूरा माह बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी क्योंकि रिज्जत में है, इनका रूलिंग लॉर्ड कौस बुर्ज है जो सियत का हाकिम है, वो रिज्जत में है, तो आपको ज़हर सियत को बैक गेयर लग गया है और आपकी मुलाजमत तरक्की की जगह तनज़्ज़ी हो रही है। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें, वरना नौकरी ख़त्म हो सकती है, नौकरी तब्दील ना होगी, अभी तनाज़ुल भी है, नौकरी का ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकते। अब जो है ना, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, वो इनके लिए ये है, इसमें फ़ायदा है 2.5 साल, लेकिन अभी जद्दी रिज्जत में है 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, मामलात अदालत तक जा सकते हैं, इसलिए एहतियात करें। और शरारती कारोबारी दोस्तों से भी अलहदगी हो सकती है, तो शुदा निकाह शादी मंगनी भी ख़त्म हो सकती है। 15 नवंबर के बाद ये हालत दुरुस्त होगी। अगर कोई शादी निकाह या ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहता है, कोई शरारती मुआहदा करना चाहता है, तो बाद जो है ना 15 नवंबर पूरा महीना कर सकते हैं। इसके बाद इनकी ज़िंदगी मौत इंश्योरेंस क्लेम मुकदमात इनके खिलाफ आएंगे 15 नवंबर तक। कर्जे में ये डूब सकते हैं, इसलिए माली मुआहदात और कर्ज लेन देन में बहुत एहतियात करें। बाद 15 नवंबर जो है ना, ये कर्जा भी ले सकते हैं और माली मुआहदात भी कर सकते हैं। ज़िंदगी भर छाए मौत के बादल हट जाएंगे और इनके जो है ना, जो कर्ज की हसूली वसूली अदायगी है वो भी आसान होगी। अब जो है ना, इनका बैरून मुल्क सफ़र वो बंद है, आला तालीम के रास्ते बंद हैं, आला कानून के रास्ते बंद हैं। इसके अलावा अगर कोई आला तालीम हासिल कर रहा है तो, या फिर कोई मुकाबले का इम्तिहान है, तो वो जो है ना नाकाम हो सकते हैं, इसलिए फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। शौहर का कारोबार जो है ना, शौहर का अपने सरतान बुर्ज का कारोबार, वो शुरू साल से लेकर 11 नवंबर तक हालत इसकी बहुत ज़बरदस्त है और 11 नवंबर के बाद इसकी हालत दुरुस्त नहीं है। और फिर जो है ना 6 का 11 नवंबर 6 से यकम से लेकर 11 नवंबर तक सरतान बुर्ज वालों की हालत कारोबार की दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो कारोबार में इस दौरान एहतियात करें। 11 नवंबर से आगे 30 नवंबर तक हालत दुरुस्त है। कारोबारी मुआहदा, कारोबारी लेन देन, चेक स्टाम्प किसी को ना दें इस दौरान। बाद में आप कारोबार की खरीदारी ये वगैरह आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अब कारोबारी फ़वाइद आपको इस दौरान मिल सकते हैं। आपके दोस्त आपका साथ नहीं दे रहे, ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी नहीं हो रही और आपके कारोबारी फ़ायदे भी बंद हैं। आपका खुफिया दुश्मन आपके पीछे उतर जाएंगे, दूर हो जाएंगे और नाकाम होंगे और आपको कामयाबी होगी। लेकिन ये एक अरसा है, पूरा महीना आपका दुरुस्त है, लेकिन 26 नवंबर तक 30 नवंबर खुफिया दुश्मन आपके पीछे लग जाएंगे, आपको नुकसान देंगे।
आपके एमिग्रेशन के मसाइल, एमिग्रेशन बैरून मुल्क रह रहे हैं तो आपको साजिश के जरिए वतन वापस लाया जा सकता है। इसलिए आपके अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं और माली के केस रीओपन होकर आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले बुर्ज जोधा की तरफ, अगले बुर्ज असद की तरफ कि असद की हालत कैसे होगी। चलिए चलते हैं असद बुर्ज की तरफ कि असद का ये महीना नवंबर का कैसा रहेगा। असद की जो शख्सियत है वो 1 नवंबर का 16 नवंबर हालत बहुत दुरुस्त रहेगी, शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी, लोग आपके दीवाने और आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। 16 नवंबर तक 30 नवंबर अकरब में असद जब जाएगा तो आपकी हालत बद हो जाएगी, आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर होगी, लोग आपके साथ झगड़ा करेंगे, नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाना इस दौरान। दौलत का खाना असद का, दौलत का खाना जो असद का है वो जो है ना 1 नवंबर तक 25 नवंबर ये दुरुस्त है, दौलत आती जब हुई नजर आती है, कारोबार फैलेगा। लेकिन 24 नवंबर तक 30 नवंबर इसमें रिज्जत आएगी तो तो इसमें जो आपको नुकसान का खतरा है, इस दौरान आप दौलत के बारे में किसी का जो है ना एतबार ना करना। अब जो है ना खानदान जायदाद सवारी ज़राअत मकान प्लाट, ये 6 ता 11 नवंबर इसमें हालत ख़राब है, ये 1 से लेकर 11 तक हालत ख़राब है। आप जो है ना बहुत एहतियात करें, जायदाद के मुताल्लिक कोई कारोबार फैसला ना करें, नई सवारी ना लें, आपकी सवारी चोरी और तबाह हो सकती है 6 तक 11 नवंबर। इसके बाद जो है ना 11 नवंबर से हालत दुरुस्त है, पूरा महीना आपकी हालत दुरुस्त रहेगी। आप कारोबारी कोई जायदाद खरीद करना चाहते तो कर सकते हैं, मकान खरीद करना चाहते हैं, प्लाट खरीद करना चाहते कर सकते हैं और नई सवारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है ना अब आपका असद का 4 नंबर यानी कि खानदान जायदाद सवारी ज़राअत मकान, पूरा महीना इसमें ज़बरदस्त हालत है। आप जो ना कोई सवारी भी खरीद सकते हैं, आपके अजीज़ रिश्तेदार जो है ना ससुराली रिश्तेदार वो आपको जो है ना वो फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन ये जो ना आप पूरा महीना आप सवारी भी खरीद सकते हैं और ज़मीन जायदाद के मुताल्लिक भी मामलात तय कर सकते हैं। असद बुर्ज वालों का औलाद का खाना मुतासिर है, इसमें पूरा महीना जो है ना रिज्जत है, इसलिए हामला ख़वातीन बहुत एहतियात करें। और इसके अलावा आपकी किस्मत भी डाउन रहेगी, मंगनी शादी भी आपकी टूट सकती है, मोहब्बत भी आपका साथ नहीं देगी, मोहब्बत से दुख मिलेगा। असद बुर्ज वाले बीमार हो सकते हैं, पहले 15 दिन इनको बीमारी घेर सकती है और इसके कारोबारी तरक्की रोक सकती है, मुलाजमती तरक्की रोक सकती है और आपकी नौकरी भी ख़त्म हो सकती है। फ़राइज़ मनसबी पर मुकम्मल तवज्जो दो। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान कौल फैल तकरीर में एहतियात करें। मामलात अदालत कचहरी में जाकर असद बुर्ज वालों की तलाक हो सकती है। शराकती कारोबारी दोस्त साथ जोड़ देंगे, शराकती कारोबारी मुआहदात अगर तोए हुए तो नुकसान होगा। ज़िंदगी मौत इंश्योरेंस क्लेम मुकदमात, ये पूरा जो है ना महीना जो है ना रिज्जत है इसको, इसलिए आप कर्ज में डूब सकते हैं, आपके माली मुआहदा टूट सकते हैं, ज़िंदगी पर पूरा महीना खतरा रहेगा। जैसे कोई आता है और दरिया पार करें, नहीं करना, ज़िंदगी के बारे में कोई शर्त नहीं लगाने, कर्जे में डूब सकते हैं, कर्जदार आपको तंग कर दें, कर्ज की हसूली वसूली अदायगी आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। जो आपका बैरून मुल्क अगर जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, आपकी माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा, आला तालीम हासिल करने वाले, मुकाबले का इम्तिहान देने वाले बच्चे बहुत आसानी से पास कर जाएंगे। कारोबार जो है ना वो आपका 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आपकी हालत ख़राब है, कारोबार के बारे में एहतियात करें। और 11 नवंबर से पूरा 30 नवंबर तक आपकी हालत दुरुस्त रहेगी, कारोबार में तरक्की जो काम करना चाहें आप कर सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं, जारी कारोबार में भी सरमाया लगा सकते हैं। आपके दोस्तों अहबाब 1 नवंबर तक 25 नवंबर आपका साथ दे रहे हैं, ख्वाहिशात दिल पूरी हो रही हैं, कारोबारी फ़ायदे पे फ़ायदा मिल रहा है जो पहले आपने इन्वेस्ट कर रखी थी, लेकिन जो ही चीज़ें आपको नुकसान देंगी इन मंसूबात में 24 नवंबर तक 16 दिसंबर दोस्त साथ छोड़ देंगे, कारोबारी घाटे आएंगे और ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी। अब असद बुर्ज वालों, आपका
खुफिया दुश्मन आपके शुरू से ही पीछे लग गए हैं, शुरू माह से, इसलिए 5 तारीख तक बहुत एहतियात करना। वो आपका कत्ल का प्रोग्राम कर सकते हैं, साजिश के जरिए आपको जेल की हवा दिखा सकते हैं, माजी के केस रीओपन हो सकते हैं, बैरून मुल्क से आप वतन वापस आ सकते हैं, अखराजात आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज सुंबला की तरफ। बुर्ज सुंबला वाले आपकी शख्सियत यकम नंबर तक 25 नवंबर, ये बहुत ज़बरदस्त है। शख्सियत में इजाफा होगा, लोग आपके गर्विदा आशिक होंगे, आपकी मकान की कशिश शख्सियत की हर एक को मुतासर करेगी। लेकिन 24 नवंबर ता 16 दिसंबर रिज्जत होगी तो आपको नुकसान का खतरा है। शख्सियत हैसियत मुतासर होगी इस दौरान। 24 ता 31-30 जो है नवंबर, नापसंदीदा लोगों नापसंदीदा जगहों पर आपने नहीं जाना। अब जो है ना आपका दौलत का खाना जो है ना, वो आपके दौलत का खाना 6 तक 11 नवंबर यकम से लेकर 5 तारीख तक हालत दुरुस्त है, और यकम अपना 6 तक 11 नवंबर फिर हालत ख़राब है, फिर 11 नवंबर से हालत दुरुस्त होगी 30 नवंबर तक। तो आपको इस दौरान आपकी दौलत फले फूलेगी, ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, और जो है ना 6 तक 11 दिसंबर इसमें नुकसान होगा, दौलत का इतबार नहीं करना। सुंबला बुर्ज वाले आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, अंदरून मुल्क सफ़र ये कामयाब हैं, और आपके बहन भाई भी आपका साथ दे रहे हैं, रिश्तेदार भी साथ दे रहे हैं। आपके ख़ानदान जायदाद, आप ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा होगा, आपकी सवारी तबाह हो सकती है, नई सवारी का असूल मुमकिन नहीं, आपके लेन देन जायदाद की खरीदो फरोख्त नुकसान देगी पूरा महीना। आपकी हामला ख़वातीन बहुत एहतियात करें। सुंबले बुर्ज की यकम नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक हालत ख़राब है। जवान औलाद के मसाइल भी आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। बे औलाद को अभी औलाद नहीं हो सकती, अल्लाह चाहे तो दे सकता है, मैं कोई एथेंटिक नहीं कह रहा, खुदा की मर्जी की बात है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह है, जिसको चुन लेता है उसे दे देता है, लेकिन मौके हालात नहीं हैं। और इसके अलावा जो है ना आपकी मोहब्बत आपका साथ नहीं दे रही, आपकी तोय शुदा मंगनी भी टूट सकती है। अभी अगर मंगनी करना चाहें तो इसमें रुकावट है। तो 15 नवंबर के बाद ये आपकी 15 नवंबर से 30 नवंबर तक ये हालत खुली रहेगी। आप बीमार हो सकते हैं पहले 15 दिन में, तो इसलिए सर का दर्द आप एहतियात करें, आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है और आपकी उल्टा तनज़्ज़ुली हो जाएगी। आपके मियाँ बीवी के हालात ख़राब हैं, शरारती कारोबारी दोस्त आपको धोखा देंगे, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा नौबत तलाक तक पहुँच सकती है, और तोयशुदा निकाह शादी मंगनी भी आपकी सुंबला बुर्ज वालों की टूट सकती है। ज़िंदगी भर चाहे मौत के बादल हट जाएंगे, माली माहिदात तोय पा जाएंगे, और कर्ज की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी। अगर कर्ज हासिल करना चाहते हैं आसानी से ले सकेंगे। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते शुरू साल से बंद हैं, लेकिन 11 नवंबर से लेकर आगे ये खुल जाएंगे। हज ज़ियारत पर सफ़र पर जाना चाहते हैं बैरून मुल्क जा सकते हैं। बैरून मुल्क कारोबारी मफादात भी आपके तय पा जाएंगे। इसके अलावा आपका कारोबार जो है ना वो आपका यकम नवंबर तक 25 नवंबर दुरुस्त है, लेकिन 26 नवंबर से लेकर 16 नवंबर इसमें नुकसान है। आपके दोस्त व अहबाब शुरू साल से आपका साथ नहीं दे रहे, कारोबारी फायदे पूरे नहीं होंगे, और जो है ना ख्वाहिशात दिल भी पूरी ना होंगी, लेकिन बाकी असनवा नॉर्मल है। 16 नवंबर था 18 नवंबर आप ये ख्वाहिशात अपनी पूरी कर सकते हैं, दोस्त भी साथ देंगे, कारोबारी फायदे भी मिलेंगे। आपका जो है ना खुफिया दुश्मन वो शुरू साल से लेकर 16 नवंबर तक आपके पीछे से हट जाएंगे, वो शिकस्त खाएंगे, साजिशें नाकाम होंगी। बैरून मुल्क आपके इमिग्रेशन के मसाइल अगर हैं तो इस दौरान हल कर लो, हल होते नजर आते हैं। मादी के केस भी बंद हो जाएंगे, सहर जादू के असरात भी बंद हो जाएंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद ये सब चीज़ें आपके खिलाफ उल्टी हो जाएंगी। दुश्मन साजिशें करने में कामयाब होंगे, बैरून मुल्क से वतन वापस आ सकते हैं, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, और आपके इमिग्रेशन के मसाइल आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज मीज़ान की तरफ। बुर्ज मीज़ान वालों की शख्सियत हैसियत शुरू साल से मुतासिर है, लेकिन 11 नवंबर से 30 नवंबर तक ये हालत दुरुस्त रहेगी, शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। बुर्ज मीज़ान वालों की जो दौलत है
वो पूरा महीना आमद ही आमद है, पैसा ही पैसा है। आमदनी बढ़ेगी तो खैर अखराजात भी बढ़ सकते हैं। बुर्ज मीज़ान वालों के अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे, बहन भाई भी साथ नहीं दे रहे, वो लड़ेंगे। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक्तसादी सफर भी नाकाम नजर आते हैं। खानदान जायदाद सवारी खानदान में इंतशार है। नई सवारी का हसूल अभी 15 दिन पहले मुमकिन नहीं है। 15 दिन पहले यकम नवंबर से खानदान में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आपकी सवारी चोरी हो सकती है, सवारी तबाह हो सकती है। लेकिन आखिरी जो 15 दिन है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप सवारी भी खरीद सकते हैं, आप कोई जायदाद ज़मीन खरीदारी भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको कामयाबी मिलती नज़र आती है। इसके बाद औलाद, पहले 15 दिन औलाद का खाना बंद रहेंगे। बे औलाद को औलाद नहीं मिल सकती, अल्लाह दे तो दे सकता है। हामला ख़वातीन एहतियात करें, जवान औलाद के मसाइल आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। और इसके अलावा आपकी मोहब्बत आपका साथ छोड़ रही है और मोहब्बत से आपको धोखा मिल सकता है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआंदाला के कामों में नुकसान होगा पहले 15, लेकिन आखिर वाली जो 15 मंगनी शादी भी तय कर सकते हो और आपको प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी ले सकते हैं, उसमें फ़ायदा होगा और मोहब्बत भी आपका साथ देना शुरू कर देगी। आप पूरा महीना बीमार हो सकते हैं, मीज़ान बुर्ज वाले एहतियात करो। जो है ना, आप पूरा महीना बीमार हो सकते हैं और आपकी कारोबारी तरक्की रोक सकती है। नई नौकरी का हसूल सरकारी का मुमकिन नहीं और आपका ट्रांसफ़र भी अभी मुश्किल से होगा। फ़राइज़ मज़हबी पर तवज्जो दो वरना नौकरी ख़त्म हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान हालात दुरुस्त रहेंगे। शरारती कारोबारी दोस्त भी साथ देंगे। शरारती कारोबारी कई एक मुआहदे तय पा जाएंगे जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपकी तोयशुदा निकाह शादी मंगनी भी तय पा जाएगी। आपके जो है ना 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आप मर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी पर मौत के साए मंडराते रहेंगे। एहतियात करें, कोई ज़िंदगी के बारे में एहतियात बहुत बेहतर है, हर बीमारी का इलाज है। इसके बाद आपके कारोबारी मुआहदात टूट सकते हैं 10 नवंबर तक और आपके कर्जे में आप डूब सकते हैं। 11 नवंबर से लेकर फिर 30 नवंबर तक ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। कारोबारी मुआहदात तय पा जाएंगे। कर्ज की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी। विरासत के मामलात आपके हक में होंगे। केस मुकदमात भी आपके हक में होंगे। आपका जो बिरून मुल्क सफ़र है वो 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक बहुत ज़बरदस्त है। आप बिरून मुल्क जा सकते हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं, वज़ाइफ लेकर आला तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं, कानूनी मशवरे आपको मिल सकते हैं, माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, मज़हब की तरफ रुझान होगा, हज ज़ियारत पर भी आप जा सकते हैं। और इसके बाद जो है ना, ये इसमें ख़तरा आएगा 26 नवंबर तक 16 नवंबर। इसमें आपकी माँ भी बीमार जिंदा है तो बीमार हो सकती है ज़ोर ज़बरदस्त। आपके अपने जो है ना बिरून मुल्क कारोबारी फ़ायदे रुक सकते हैं, बिरून मुल्क जाना भी बंद हो सकता है। आपके कारोबार को जो है ना, मीज़ान बुर्ज वाले के कारोबार को 1 से लेकर 5 तक बहुत खतरा है, इसमें अकरब भी है, तो कारोबारी जो है ना एहतियात करें। फिर नॉर्मल हालत रहेगी। फिर 16 नवंबर से 18 नवंबर तक ज़बरदस्त हालत रहेगी, कारोबार बुलंद रहेगा। कारोबारी कोई भी फैसला करना है, नया कारोबार करना है, जारी कारोबार में सरमाया लगाना है तो 16 से 18 बेहतरीन टाइम है। अब जो है ना, आपका दोस्तों अहबाब आपका शुरू साल से साथ दे रहे हैं, कारोबारी फ़ायदे भी आपको मिल रहे हैं और ख्वाहिशात दिल भी पूरी हो रही हैं। लेकिन 16 नवंबर से लेकर जब असद बुर्ज आपका रूलिंग लॉर्ड अकरब में जाएगा तो आपको कारोबारी फ़ायदे भी रुक जाएंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी और दोस्त भी आपका साथ नहीं देंगे। मीज़ान बुर्ज वालों के लिए 1 नवंबर से 25 नवंबर तक खुफिया दुश्मन दफा होंगे। माजी के केस बंद हो जाएंगे। बिरून मुल्क अगर कोई इमिग्रेशन का मसला इस दौरान हल कर सकते हो, लेकिन फिर 24 नवंबर से 16 नवंबर तक इसमें बहुत नुकसान है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब हम आपको कहते हैं कि बद हालतें कैसे रोकें। 5 सदके ले लो, दाल, मूंगी दाल, मछली, बाजरा, सूरज, मक्की, चावल, टोटा, इनको लेकर मिलाकर थोड़ा सा सदका करो और बाद नमाज सुबह ये वज़ाइफ पढ़ो। हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार, एतवार वाले दिन या फतह 499 मरतबा, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार,
منگل والے دن یا قابض 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، اور جمعہ والے دن یا نور 256 بار۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار دنیا میں بھی بھلائی فرما اور آخرت میں بھی بھلائی فرما، دنیا اور آخرت کی جو آگ ہے اس سے ہمیں بچا۔ دنیا کی جو آگ ہے وہ حسد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے، اس دنیا میں بھی بچائے، تمام امت مسلمہ کی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان میں رزق، روزی، صحت، کامیابی عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔